بریک کے بعد خوشامدید۔ وفاقی حکومت کے مشترکہ دوستوں کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو تعلقات کی نئی شروعات کے پیغامات بھیجے، ورکنگ ریلیشن بحالی کی خواہش ظاہر کی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت سے تعلقات کی فوری بحالی سے معذرت کر لی ہے۔ الٹی گنتی گننے والے خود بھی سیدھے ہوں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ باغ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کا خطاب۔ انجینئر امیر مقام نے کہا آزاد کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے ہیں، پھر نون لیگ نے کس طرح دھاندلی کرائی؟ رونے دھونے کا وقت نہیں، نتائج قبول کریں۔ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ حکومت اگلے 2-3 ہفتوں میں آزاد کشمیر میں بن جائے گی، ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے۔ پہلا کام یہ ہوگا اس معاملے کو ریزالو کریں۔ ایکشن کمیٹی میں 99% لوگ ہمارے بھائی، وہ محب وطن کشمیری بھی ہیں، وہ محب وطن پاکستانی بھی۔ 1-8% لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ایجنڈا اور ہے۔ صدر آپ کا ہے آزاد جموں کشمیر کا، اور آپ کا وزیر اعظم ہے پیپل پارٹی کا۔ آپ کے لوگ بھرتی کیے ہوئے لگائے ہوئے ایڈمنسٹریشن اور پولیس افسران ہیں، کس طرف ہم آگے مسلم لیگ والے اور آپ کے ساتھ دھاندلی کرائی، یہ سمجھنے سے بالکل بالا تر بات ہے۔ ابھی رونے دھونے کا ٹائم نہیں ہے۔ پی پی رہنما نیر بخاری کہتے ہیں الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کی، حکومت کی جانب سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے نئے صوبوں سے متعلق بیان دیا۔ نئے صوبے بننے کا عمل آئین میں درج طریقے کے مطابق ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ نیر بخاری نے کہا پی پی قیادت کے ساتھ نئے صوبوں کے معاملے پر اب تک کوئی مشاورت نہیں کی گئی، مشاورت ہوئی تو پی پی قیادت پارلیمانی پارٹی اور مرکزی مجلس عاملہ میں بات کرے گی۔ پی پی حکومت سے چھٹکارا چاہتی ہے تو آئینی عہدے چھوڑ کر اپوزیشن میں بیٹھے۔ وفاقی حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کے لیے پی ٹی آئی کے دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اطلاعات کے پی شفیع جان کہتے ہیں بانی کے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ہر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، لانگ مارچ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ 27 ستمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کا فیصلہ پارٹی اور اتحادیوں کی مشاورت سے کیا۔ لانگ مارچ ایک دن کا نہیں ہوگا، کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ مکمل تیاری کے ساتھ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ پاک ترک سعودی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ساتھ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا طاہر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دے دیا۔ او آئی سی سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اسٹریٹجک اقدام کو سراہا اور حمایت کا اظہار کیا۔ کہا یہ معاہدہ خطے اور اسلامی دنیا میں امن و استحکام کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ معاہدہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنج کا مقابلہ کرے گا اور رکن ملکوں کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ سیکرٹری جنرل او آئی سی نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی کی دانش مندانہ قیادت اور کاوشوں کو سراہا۔ بحرین نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بحرینی وزارت خارجہ نے تینوں ملکوں کی شاندار دفاعی صلاحیتوں اور فوجی مہارت کو اجاگر کیا۔ بحرینی وزارت خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو وسیع علاقائی دفاعی نظام میں اہم اضافہ قرار دیا ہے۔ کہا سعودی عرب کی سلامتی بحرین کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے، قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو ملکی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی پیش رفت ہے، اس سے ملکی دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی۔ معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ بلاول بھٹو نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا۔
मक्का दिफाई मुआहदे के बाद भारत पाकिस्तान के मफादात का एतराफ़ करने पर मजबूर। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। भारतीय मीडिया का कहना है मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजीद मजबूत कर सकती है। पाकिस्तान को तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगूमी ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जामे शहादत नोश किया। ISPR ने बताया ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान के इलाके कंबेला और आसिमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 4 दहशतगर्द जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। जिला हंगू में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद कैप्टन हमजा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर में अदा की गई नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम, आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद कैप्टन हमजा का ताल्लुक शकरगढ़ के नवाही गांव पिंडी सेनिया से है, जिससे खाकी आबाई गांव पहुंचने पर फूलों की पत्तियां नछावर की गईं। गांव की फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। शहीद को खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शहीद कैप्टन हमजा ने सोगवारान में वालदैन, 3 बहनें और 1 भाई छोड़ा है। निज़ाम ढह गया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने मोहसिन नकवी के निज़ाम की नाकामी के बयान की मुकम्मल तायीद कर दी। नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स के क़याम की तजवीज़ पर पूरे मुल्क में गुफ्तगू के आगाज़ का मुतालबा कर दिया। मुल्क की तकदीर का फैसला करने के लिए कि मोहसिन नकवी ने झुका है, उसमें कौन 4 लोग थे? एक फैमिली के लोग बंद कमरे में बैठ के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। जो निज़ाम है वो कोलैप्स कर गया, उस पर तो मैं 100% मुत्तफिक हूँ। जितनी नाअहल फेडरल हुकूमत है उतनी नाअहल सूबाई हुकूमत है। 18 साल में पीपल्स पार्टी के निगरानी में सिंध बहुत पीछे चला गया। सड़कें टूटी हुई, आप लाहौर जाते हैं तो आप दंग रह जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब, मैं उनको मार्क्स दूं तो जाहिर सी बात है लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है। क्या कराची को उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया? बिल्कुल भी नहीं किया। क्या कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल। NFC अवार्ड के तहत आपने सेंटर से सूबों तक तो ले लिया, लेकिन आपने उसको नीचे तक नहीं पहुंचाया। टॉप पार्टी है पंजाब की, अगर वो इस पर नहीं बिलीव करती कि हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि हमारी गिरफ्त जो है लूज हम कर जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पीर की दोपहर 12 बजे से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। डीजल की कीमतों, टोल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में कमी का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। वजीर पेट्रोलियम और पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट को इस्तीफा दे देना चाहिए। हुकूमत सिंध की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स की पार्किंग पर काम रुकवाना ज्यादती है। मुज़ाकरात जो हैं वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से नाकाम हो चुके। जो हमारा 8 अगस्त बरोज़ हफ्ता से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान था, हम उस पर कायम हैं और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर आज हम मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। कहीं हमने सिर्फ 2 दिन का उन ट्रांसपोर्टर्स को टाइम दिया है जो कि गाड़ियां रोड पर थी। सारी की सारी डिमांड जो है हमारी आईनी है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब से रिजाइन की डिमांड करते हैं। आज हम ये भी डिमांड करते हैं कि मरियम औरंगजेब जो है वो भी रिजाइन करे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल अकबर खान के भी इस्तीफे का हम मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन के महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल। पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन के रहनुमाओं ने बताया हड़ताल का पहला रोज़ है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन से इज़हार यकजहती करते हुए उन्होंने मज़ा खड़ी कर दी हैं। आवाम को दरपेश मुश्किलात की जिम्मेदार हुकूमत है। गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल का आज पहला दिन है। दालें, सब्जियाँ, अद्वियात की तरसील मार्केटों तक रुक गई है। बंदरगाहें बंद हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरसील बंद हो चुकी है और इस सारे नुकसानात की ज़िम्मेदारी हुकूमत पे आयद होती है। हमने इनको 10 दिन का वक्त दिया। जब तक रोज़ाना की बुनियाद पर डीज़ल की कीमतों का रद्दबदल का फैसला वापस नहीं लिया जाता और जो नाजायज़ और अज़ाफ़ी टूल प्लाजे हैं वो ख़त्म नहीं किए जाते। मुल्क भर में मज़दा एसोसिएशन के साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल का आज पहला दिन है। दालें, सब्जियाँ, अद्वियात की तरसील मार्केटों तक रुक गई है।
बंदरगाहें बंद हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरसील बंद हो चुकी है। और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान पेट्रोलियम लेवी और महंगे पेट्रोल के खिलाफ एक आवाज़ है। आवाम का मुतालबा है पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर की जाए। 16 अगस्त से चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज़ किया जाएगा। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, सिंध, बलूचिस्तान और केपी में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने होंगे। हुक्मरानों को अवाम दुश्मन फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। IPPs के खिलाफ जद्दोजहद की और हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। IPPs के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में बिजली की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। कातिल अमरीका का बस चले तो वो ईरान का वजूद ही ख़त्म कर दे। तारीख़ी मज़ाहमत ने अमरीका को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यौम सहाफ़त पर कहा, दुश्मन मिज़ाइलों से ईरान को नहीं झुका सकता, इख्तलाफात पैदा करके मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश कर सकता है। सहाफ़ी कौमी इत्तेहाद मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इख्तलाफात को हवा देने की बजाय इत्तेहाद बरकरार रखने में हुकूमत की मदद की जाए। जंग और अमन दोनों सूरतों में सबसे बड़ी तशवीश अमरीकी हमले नहीं, अवाम की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी है। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को अपने अज़ाइम में कामयाब। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।